students, welcome to Exambee that makes you learn 50% faster. I'm your host Anshuman, your English faculty. So students, in this series of CAT level, what we are going to do today, we are going to do this short series based on error detection, right? So what I've done is I have taken few difficult sentences, okay, which comprises of difficult vocabularies, and these are bit long sentences, right? So here's the first sentence that you can see in front of you, and you know your job already, right? What do you have to do? You need to find the erroneous part. कहाँ पर error lie करता है, कहाँ पर गलती है, क्या grammatical mistake है, ये आपको यहाँ पर find out करना है, right? So let's get started, right? See, so let's read the sentence. Exhibiting an exceptional penchant for perspicacity, the erudite scholar seamlessly elucidated the intricate of quantum mechanics, leaving the attendees in a state of profound enlightenment, which ultimately made the professor of the scholar accelerated. Right? So first of all, हमेशा आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए सेंटेंस को समझने की, right? कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? देखिए एरर डिटेक्शन में तो एरर डिटेक्शन में भी पॉसिबल है, राइट? बट यूजुअली इन फिलर्स, राइट? और काफी लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है? तो इन तरीके के क्वेश्चन में से ना जब आप सेंटेंस का मतलब समझते हैं तो सेंटेंस का मतलब समझकर भी काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है आंसर ढूंढने में. Why? Because it depends on the nature of the sentence as well. If you are able to find that the sentence is in positive sense or negative, right? Sentence कुछ positive की बात कर रहा है या कुछ negative चीज की बात कर रहा है, तो उस basis पर भी आप क्या अपना आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है? So हमेशा कोशिश रखनी चाहिए कि सेंटेंस का मतलब आप समझो, राइट? बट यू नो फॉर लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऐसा शायद हमेशा नहीं पॉसिबल है बिकॉज टाइम लिमिट, राइट? तो टाइम लिमिट क्योंकि होती है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी से क्या आप देखते हैं सेंटेंस और ग्रामर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहां ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? बट ट्राई कि आपको हमेशा जो चीजें हैं वो क्या है समझ में आए. तो पर्पस इसका ये भी है थोड़ा सा, इससे वोकैबुलरी भी आपकी एनरिच होगी, राइट? सो सेंटेंस देखेंगे, क्या कहेंगे, इतना तो आपको जरूर समझ में आ चुका होगा कि सेंटेंस ये कह रहा है, सेंटेंस एक स्कॉलर के बारे में बात कर रहा है जिसने कुछ काफी अच्छा किया है ना, जिसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके जो प्रोफेसर थे वो काफी खुश थे, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को. Exhibiting an exceptional penchant for perspicacity. Exhibiting means to show, right, or display. Exceptional penchant. This can also be pronounced as penchant, right? So penchant is you can say passion or something that you like to do, right? And then perspicacity. So what is perspicacity? This is you can say intelligence, right, or your interest to delve into something, okay? So you can say a desire to delve into something. For example, I have a perspicacity, right, towards English language. मुझे English language जो एक subject है तो उसको पढ़ना, उसमें घुस जाना, उसकी बारीकी तक बहुत पसंद है, ठीक है? So then erudite scholar, the erudite scholar, erudite means here you can say intelligence or someone who shows who is genius, who shows a lot of knowledge, ठीक है? So seamlessly elucidated. Now elucidated is not that like difficult word, it means explained in detail, right? Explain. The intricate, what is intricate? Intricate means something that is complex, जो क्या है, complex है या detailed है, ठीक है? Of quantum mechanics. Quantum mechanics is now one of the field, right, leaving the attendees in a state of profound enlightenment, this you know, which ultimately made the professor of the scholar accelerated. Now what's the meaning of accelerated? That means ecstatic, right, extremely happy. So this is it, ठीक है? मतलब आपको समझा दिया है. Now it should become very easy for you people to to like explain this sentence, okay? So it should become easier for you to explain that what the sentence is trying to say and what should be the correct, right? What should be the correct word.
right? What should be the correct option? So you will try to now find out the correct option कि कहां पर जो एरर है वो लाई हमारा करता है। एक बार इसको ठीक है हिंदी में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए सेंटेंस कह रहा है कि एक स्कॉलर है जिसने एक्सिबिट किया या डिस्प्ले किया अपना अमेजिंग पैशन, ठीक है, किस चीज का पैशन, ठीक है, उसका जो पैशन था क्वांटम मैकेनिक्स के प्रति, ठीक है, कि वो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा घुस जाता है अंदर, और वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर था। तो उसने बहुत ही आसानी से जो क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रिकेट यानी डिटेल और कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उसने बहुत ही आसान तरीके से समझा है, ठीक है। और इससे हुआ क्या, जो ऑडियंस थी या जो अटेंडेंट्स थे, जो हो सकता है वो एक प्रेजेंटेशन थी, कुछ भी था, तो जिन लोगों ने वो अटेंड किया वो काफी उत्साहित थे, उन्हें काफी अच्छा लगा, ठीक है। और इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली जो प्रोफेसर थे किसके, स्कॉलर के, ठीक है, तो वो काफी खुश हुए। अब यहां पर आपको फाइंड आउट करना है क्या, एरर, राइट। सो हर एक वर्ड हमने यहां पर देखा, लेकिन जब मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो कुछ वोकैब्स हमने यहाँ पर देखे, तो एक वर्ड यहाँ पर हमने देखा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मैंने आपको मतलब क्या समझाया, कुछ चीज जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है या कॉम्प्लेक्स होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लीज ध्यान में रखिएगा, डिटेल, कुछ चीज ऐसी होती है, यानी दिस इंट्रिकेट शुड बी योर एडजेक्टिव, राइट, जो किसी चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इंट्रिकेट क्वेश्चन, राइट, ये एक डिटेल या एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लग रहा है ना। सो इंट्रिकेट, तो इंट्रिकेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, यहां पर एक प्रीपोजिशन लगा है ऑफ, ठीक है, जो जिसका मतलब क्या है, इट इज ट्राइंग टू शो एन एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स और इस वर्ड का। यदि क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ चीज है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स को क्या कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, वो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ चीज बता रहा है। तो यहां पर आपको समझ में आता है कि यहां पर आना चाहिए नाउन, ना कि एक एडजेक्टिव। सो इंट्रिकेट शुड बी रिप्लेस्ड विद इंट्रिकेसीज, राइट, इंट्रिकेसीज, जिसका मतलब हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट, कॉम्प्लेक्सिटीज यानी ऐसी चीजें जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स की एक उन एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो क्या है, बहुत ज्यादा टफ होते हैं समझने के लिए या जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सो इंट्रिकेसीज यहाँ पर आएगा जो कि एक नाउन है, ना कि एक एडजेक्टिव जो क्या है, इंट्रिकेट है, राइट। सो प्लीज do keep in mind, please make a note of it, कहां पर नाउन आना है, कहां पर एक एडजेक्टिव आना है, ठीक है ना। प्लीज नोट कि एक वर्ड, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो फॉर एग्जाम्पल इंट्रिकेट है तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इंट्रिकेसीज हो गया नाउन। एक वर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है, वो एक जैसा का है, उसको वैसे याद छोड़ दो, वो दोनों टाइम पे, ठीक है, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, या फिर वर्ब की बात करें, ठीक है, तो एक वर्ड, ठीक है, वर्ब भी हो सकता है और क्या, एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखिए इंट्रिकेसीज यहाँ पर आना चाहिए। सो हम सेलेक्ट करेंगे हमारे बी वाले को एज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो होप आपको मजा आ रहा होगा। देखिए कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, काफी चीजें हमको इससे सीखने को मिली, वो क्या सीखने को मिली, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने को मिला फाइनली, ठीक है, हमको ये भी समझ में आया कि नाउन कहां पर यूज करना है और एडजेक्टिव कहां पर यूज करना है, द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो here's the next question, a similar kind of question जहां पर थोड़ा सा bit difficult होगा और vocabularies यहाँ पर मैंने क्या की है, incorporate की। So in their fervently pursuit of the elusive treasure, the intrepid explorers traversed the treacherous terrain, hell for leather, disregarding the inherent perils that lay concealed beneath the veneer of excitement। ठीक है, fervently, ठीक है, in their fervently मतलब बिल्कुल क्या है, जिसमें जोश है, ठीक है, या फोर्स, एनर्जी,
परस्यूट यानी जिस चीज को आप चेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ आपका एक ऐसा जर्नी है, यहाँ पर हम इसको जर्नी लिख देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, जो क्या है आप जिसको चेस कर रहे हो, राइट। देन वी हैव elusive. So now what is elusive? Elusive is something that's difficult to achieve, right? Difficult to achieve. तो एक ऐसा ट्रेजर जो बहुत मुश्किल है मिल पाना, अचीव कर पाना। The intrepid explorers. अब देखिए एक एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है एक्सप्लोरर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, intrepid यानी हीरोइक हम कह सकते हैं, ठीक है, जो क्या है निडर है, जिनको डर नहीं लगता, ठीक है, जो बहुत क्या है ओपन है, बहुत करेजियस है, जिनमें बहुत ज्यादा विलर है, ठीक है, बहुत ज्यादा करेज है, तो ऐसे एक्सप्लोरर्स, ठीक है। ट्रैवर्स द ट्रेचरस टेरेन, ट्रेचरस मतलब होता है क्या, समथिंग दैट कैन डिसीव यू, जो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है, और टेरेन मतलब होता है, ठीक है, वास्ट एरिया ऑफ ए लैंड, या एक लैंड जो बहुत ज्यादा क्या है स्ट्रेच है, तो एक बड़ा सा लैंड, ठीक है। हेल्पफुल लेदर, नाउ दिस इज अ इडियम दैट वी यूज, हेल्पफुल लेदर मींस गुड पेस, एक अच्छी स्पीड, फास्ट, क्विकली, राइट, हेल्पफुल लेदर। Disregarding the inherent perils, perils means dangers that lay where, conceal means hidden, beneath what, the veneer of excitement, veneer you can say is a cover। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, okay, this was like tough for you। See, in their fervently pursuit of the elusive treasure, यानी हम हम कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली एक्सप्लोरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्या एक ऐसे ट्रेजर को, ठीक है, ढूंढने के लिए, ठीक है, वो बहुत ही एनर्जी के साथ गए हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सप्लोरर्स हैं वो क्या, ट्रैवर्स मतलब तो ट्रैवल थ्रू, तो उन लोगों ने ट्रैवल किया बहुत ही ज्यादा एक ऐसा टेरेन को, एक ऐसे लैंड को जहां पर जो उन्हें धोखा दे सकता है, जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम से या ऐसे डिफिकल्टी से भरा पड़ा हो कि आपको भी ना पता चले, ठीक है। और बहुत ही वो जल्दी जा रहे थे, और किस चीज को डिसरिगार्ड करते हुए, किस चीज को वो ध्यान में नहीं रख रहे थे, जो वहां पर बहुत ज्यादा डेंजर्स थे छुपे हुए, ठीक है। उनका जो एक्साइटमेंट था वो अपने एक्साइटमेंट को नहीं देख रहे थे, लेकिन उनके एक्साइटमेंट के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजर छिपा था। आपने मूवीज अगर देखी होगी ना, जो एक्सपेडिशंस पर बेस्ड होती है कि वहां पर एक या कुछ वेंचर्स पर बेस्ड होती है कि एक आइलैंड में क्या है, ट्रेजर है, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल पैकअप होके जाते हैं उस तरफ, ठीक है, फिर रास्ते में काफी सारे पड़ाव आते हैं, जैसे एक बहुत पुराना शो आता था हातिम, है ना, सो हातिम वो बहुत इंटरेस्टिंग से शोज रहते थे, वहां पे क्या होता था कि एक उनको क्या करनी है, जर्नी पूरी करनी है, लेकिन रास्ते में काफी सारे पड़ाव आएंगे, तो कहीं पे उनको कुछ मॉन्स्टर्स मिलेंगे, कहीं पर उन्हें ड्रैगन से फाइट करना पड़ेगा, कहीं पे तलवार ऐसी आएंगी और उन्हें जंप करके जाना पड़ेगा ना, कहीं पे वो पैर रखेंगे लेकिन वो क्या है नीचे गिर जाएगा वो। सो एक इस तरीके का वो ट्रेचरस टेरेन वहां पर था, ठीक है, ओके। अब आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट करने है क्या, ग्रामेटिकल एरर, कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। Intrepid explorers एडजेक्टिव यूज हुआ है, elusive treasures उसके लिए भी एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, treacherous terrain इसके लिए भी एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, जो हमारा क्या है helpful leather, जो idiom यूज हुआ है that is also correct, right, और tense भी correct है बाकी सारे, लेकिन एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है, सिर्फ fervently, in their fervently pursuit, हम बात करें pursuit की, यानी उस एक उस जर्नी की, उस वेंचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वेंचर इज व्हाट, अ डिफिकल्ट और ए डेंजरस, ओके, एडवेंचर, राइट। सो उस एडवेंचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो क्या है वर्ड है, दिस शुड बी एन एडजेक्टिव, ये डिफाइन करना चाहिए इस परस्यूट को। बट fervently इज व्हाट, होल्ड ऑन, fervently क्या होता है, fervently is your adverb, right? और adjective क्या होता है, adjective होता है आपका fervent।
so forward is your adjective, while जब हम उसमें ly लगा लेते हैं, so that becomes adverb. अब adverb क्या होता है और adjective क्या होता है, this you should know, right? नहीं पता तो शॉर्ट में देख लीजिए. Adverb आपका डिफाइन करता है एक verb को, right? और दूसरा एक adjective को भी, और तीसरा किसी दूसरे adverb को भी. So adverb can define one verb, it can also define an adjective, and it also can define another adverbs. ठीक है, तो यहाँ पर तो noun लगाए, ना यहाँ पर कोई verb है, ना यहाँ पर कोई adjective है, और ना यहाँ पर कोई adverb है. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए adjective. Hence it should be fervent, not fervently, right? So हमारा जो क्या होगा, erroneous part होगा, वो होगा A में. Hence हम क्या करेंगे, इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे, ये वो पार्ट है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखा, प्लस इतनी सारी वोकैबुलरीज देखी, प्लस एक और चीज क्या देखी, हाउ टू डिफरेंशिएट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. कहां पर एडवर्ब आएगा, कहां पर एडजेक्टिव आएगा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, राइट. देखिए क्वेश्चन से कितना कुछ सीखा जा सकता है. इंग्लिश ग्रामर इज सो वास्ट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं. सी, यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, जाते जाते आप लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे. तो ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सी, the coalition achieved a mass victory with many votes, even though there were relentless efforts from the opposition to dispatch the alliance. Hence, it's obvious that the members of the alliance must be putting the flags off in the party's head office. The coalition achieved. Well, what is a coalition? ठीक है, क्या आप मुझे कोएलिशन का एक ताजा उदाहरण दे सकते हैं. इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया क्या है, एक अलायंस है अपोजिशन पार्टीज का, जो किसके अगेंस्ट फॉर्म हुआ है, द रूलिंग पार्टी, राइट. सो कोएलिशन जो शब्द है, इसका मतलब होता है एन अलायंस, यानी a group of parties, okay, two or more than parties. जब political parties साथ में आकर के एक गठजोड़ बनाती है, हिंदी में हम इसे गठजोड़ कहते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, उसको हम कह सकते हैं coalition, या नॉर्मल एक कॉमन शब्दों में हम उसे कह सकते हैं alliance, right? So the coalition achieved what? A mass victory. बहुत बड़ी victory, एक बहुत बड़ी जीत उसने अचीव की काफी वोटों के साथ, with many votes, even though, बावजूद किसके, there were relentless efforts from the opposition. Relentless मतलब continuous, with force, ठीक है. तो अपोजिशन के द्वारा काफी एफर्ट्स लगाए गए टू डिस्पैच द अलायंस. और डिस्पैच का क्या मतलब है, डिस्पैच का मतलब यहाँ पर होता है डील करना, ठीक है. काफी एफर्ट्स के साथ डील करना. तो जो एफर्ट क्या था, जो अपोजिशन था, वो उस कोएलिशन के अगेंस्ट काफी एफर्ट्स लगा रहा था उसको हराने के लिए, राइट. लेकिन फिर भी क्या, वो काफी वोटों से जीती. इसीलिए ये बहुत क्या था, ऑब्वियस था कि जो मेंबर्स थे उस अलायंस के, जो जीते थे, वो जरूर क्या करेंगे, पुटिंग द फ्लैग्स ऑफ इन द पार्टीज हेड ऑफिस. वो जरूर फ्लैग्स को क्या करेंगे, ठीक है, जो भी लिखा आप समझिए, अपने पार्टी के हेड ऑफिस में. यहाँ पर सेंटेंस को समझ के आप जरूर एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि जो कोएलिशन है, क्योंकि वो जीता, तो वो क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा. It will celebrate its victory, right? वो अपनी जो जीत है उसको क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, putting the flags off, ये एक इडियम होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, एक जब आपने विक्ट्री अचीव की तो आप क्या करते हैं, सेलिब्रेट आप करते हैं. सो पुटिंग द फ्लैग्स ऑफ, क्या ये सही है? ऑफ यहाँ पे यूज हुआ है, एक प्रपोजिशन यूज हुआ है. द करेक्ट इडियम इज एक्चुअली पुटिंग द फ्लैग्स आउट. तो यहाँ पर आपको इस इडियम में थोड़ा सा क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, प्रीपोजिशन आपको चेंज करना है, बिकॉज़ द इडियम दैट वी हैव टू सेलिब्रेट इज पुटिंग द फ्लैग्स आउट एंड नॉट द पुटिंग द फ्लैग्स ऑफ, राइट. सो हमारा जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो देखिए कहां पर है, पुटिंग द फ्लैग्स ऑफ. कैन यू फाइंड दैट? या हियर इट इज. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है. सो देखिए ये वाला इजी था ना, कहा था मैंने कि ज्यादा टफ नहीं होगा जाते जाते, ठीक है.
सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। 3 ही क्वेश्चंस थे बट काफी कुछ सीखने को हमको इस सेंटेंसेस से, इन क्वेश्चन से मिला। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, विल मीट वंस अगेन विद सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड राइट इन द कमेंट फॉर श्योर, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वुड एक्सपेक्ट अस टू ब्रिंग। किस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं कि हम लाएं, तो उसी तरीके के वीडियोस पर हम काम करेंगे और वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्लीज डू टेल अस ओपनली क्या आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो लिखिए कि इस पर आपको एक वीडियो चाहिए। सो विल श्योरली ब्रिंग इट फॉर यू, राइट, बिकॉज यू मैटर टू अस लॉट, राइट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगा आपसे सबसे मिलके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।